Personality of Urfi Javed. Let's see what we get here. Bully highlights your tendency to intimidate others, helps you confront the inner fears that bully you. There is some kind of bullying here. You have the damsel. What does this say? So difficult to see with this light. Understanding the nature of healthy romance inspires you to rely on yourself. Inspires you to rely on yourself, and she is completely relying on her own ability to make it big, to make it to her dreams, to go to her dreams. Damsel. सो यहाँ पे तो डेफिनेटली हमने एक चीज़ पकड़ा कि कॉन्शियस लेवल में देयर इज सम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. हमने ये भी पकड़ा कि या फिर जाना कि उसके आसपास के लोगों का उस पर इम्पैक्ट है पहले वाले लाइफ में, बिफोर शी एंटर द शोबिज. तो पहले के लोगों का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके लाइफ पे, जहाँ पे उसको उन लोगों के कारण काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है. मे बी शी वॉज बुलीड बाय हर पीपल, बट नाउ हर न्यू अवतार इज दैट ऑफ अ डैम्सल, यू नो, ड्रेसिंग एंड मोर लाइक अ लेडी गागा काइंड. एंड वाई शी डज दैट, यू नो, यहाँ पे देखिए आपको इसका आंसर मिलेगा. Inspires you to rely on yourself. Now here is a thing, guy, कि now Urfi is not any nepo kid. उसको कोई, she's not going to get any launch pad और बहुत सारे chances to make her dream come true. She knows what is her capabilities, वो क्या कर सकती है, वो कैसे कर सकती है, and she knows that she has to depend on herself. यहाँ पे भी वही चीज़ बताया जा रहा है हमें, damsel. तो ये जो डिफरेंट तरह का एक कपड़ा पहनना है इज टू स्टे रेलेवेंट, बिकॉज दिस इज व्हाट शी कैन डू. उसको पता है कि इफ शी डज दिस वो न्यूज़ में रहेगी, एंड जो न्यूज़ में रहता है पीपल गेट इंटरेस्टेड इन दैट, एंड पीपल कुछ भी हो तो शी इज़ रेलिवेंट, एंड दैट इज़ हाउ शी कैन मूव फॉरवर्ड इन हर लाइफ. सो बेसिकली शी इज़ मे बी शी इज़ ड्रेसिंग द वे शी वॉन्ट्स टू ड्रेस, मे बी इट इज़ आउटरेजियस, पीपल डोंट लाइक इट एंड ऑल दैट, बट still she is depending on her own capabilities to move up towards her dream. आप समझ रहे हो? तो basically whatever she can do to move up her dream, that is kind of a thing. And she really believes कि you have to depend upon your own self to move to your dream. No, not like, you know, having a godfather who will launch you, who will, you know, feed you with your silver spoon and all that. So that is what it is. That is what we are getting now. यहाँ पे भी एम्परर का कार्ड हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे देखो कैसे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बहुत ही स्लो जर्नी स्टार्ट किया था. जब वो शायद शोबिज में आई होगी तो उसको कुछ भी नहीं आता होगा कि व्हाट इज दिस शोबिज, हाउ टू डू अ मेकअप, यू नो, शी वाज वेरी लाइक naive, didn't know anything, ABC of showbiz, makeup and all these things, and now she is like, you know, so confident, so master of her game, sitting comfortably and doing what she likes to do. तो वो कॉन्फिडेंस यहाँ से स्टार्ट करके उसने अपना कॉन्फिडेंस यहाँ कर लिया है आज. सो दैट इज अ पर्सनैलिटी. Queen of Cups in reverse. What is it this telling us? Should we take a clarifier for this? Queen of Cups in reverse. What does this mean? Seven of Cups in reverse.
Seven of Cups in reverse. What does that mean? यहाँ पे एक फ्री स्पिरिटेडनेस आ रहा है. फ्री स्पिरिटेडनेस इज कमिंग अक्रॉस हियर ऑल्सो. एंड but this is something that is she hides. Queen of Cups is somebody who is not revealing her real emotions. She hides her real emotions. Actually, you know what I'm getting from this card? That she kind of hides her true self. You know, that colorful personality, very happy, very outrageous dressing, very spontaneous, very bold. इन सारी चीज़ों के पीछे कोई एक छोटी बच्ची है जो कि very carefree है and she hides her real self. Okay, Queen of Cups in reverse is somebody who is not who has her guards up. She is not revealing her emotions. She is not revealing her true self or real emotions. और यहाँ पे हमने देखा है कि उसको किसी चीज़ का दुख है. There have been people in her life who have disappointed her. She has felt डिसअपॉइंटमेंट. कॉन्शियस लेवल पे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है, पर उसको देख के लगता है क्या कि उसको कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी होगा. और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स हाइडिंग, काइंड ऑफ नॉट शोइंग हर ट्रू सेल्फ. यानी कि वो अपने इस अतरंगी रूप के अंदर ना अपने आप को छुपा के रखती है, अपने रियल सेल्फ को छुपा के रखती है. एंड यहाँ पे उसका एक रियल सेल्फ है. Who wants to kind of launch into something big. She wants something for her life. यहाँ पे भी वो दौड़ के रेगिस्तान, यहाँ पे भी देखो इट्स अ डेजर्ट हियर. और यहाँ पे हमने देखा है कि हाउ थिंग्स वर नॉट फाइन विथ हर एंड हाउ पीपल वर नॉट सपोर्टिव व्हेन शी ग्रू अप. एंड शी इज काइंड ऑफ वांटिंग टू गो अवे फ्रॉम दिस डेजर्ट, लॉन्चिंग हर सेल्फ, काइंड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग. तो आप देख रहे हो कि जो अपने बात पकड़ा था शुरू में कि कैसे शी हैज़ दिस वेरी स्टेबल एनर्जी ऑफ मूविंग टूवर्ड्स हर ड्रीम, ऑफ हैविंग अ बिग ड्रीम, वेरी बिग ड्रीम, and then slowly and steadily moving towards that dream, believing in that dream. कभी कभी dreams, हम dreams, we get scared of dreams and we don't even dream because we think, oh my goodness, इतना बड़ा dream coming from a small town, how can I dream of something so big? पर यहाँ पे उस तरह का कुछ नहीं है. Yes, there is some disappointment. She keeps to herself. She hides her true self. यहाँ पे देखो ये वाला कार्ड उल्टा भी हो गया था. She hides her true self. उस true self के पीछे एक बच्ची है जो कि काफ़ी carefree है and then she is filled with energy, enthusiasm to take on the journey. और अपने इसी spirit के साथ, Page of Wand के spirit के साथ कि रास्ते में कोई भी शी इज़ नॉट सीइंग एनी ट्रीज, एनी कुछ भी हेल्प नहीं है. रेगिस्तान है, चिलचिलाती धूप है, कोई भी हेल्प कुछ नहीं है और उसके बड़े बड़े ड्रीम्स है. अब इस डेजर्ट से वो कैसे जाएगी? बट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या पता चला है कि दिस इज़ द पेज. यहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है एक्चुअली, पर ये हमको पता नहीं चलता है. पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि दीज आर द थिंग्स दैट शी डजंट शेयर. पर अगर आप इसके बट शी विल शेयर विथ प्रॉबेबली क्लोज पीपल. ओके, शी विल शेयर दिस विथ प्रॉबेबली क्लोज पीपल. अगर इस परत को आप हटाएंगे तो यहाँ पे आपको पेज ऑफ वॉन्ड की जर्नी स्टार्ट होगी कि यहाँ पे हमको नाइट की जर्नी से किंग की जर्नी मिल रही है और बीच का एक क्वीन का भी पार्ट आ गया है यहाँ पे. तो आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें यहाँ पे मे बी शी इज़ वेरी काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट बट शी डजंट शेयर एवरीथिंग विथ पीपल. यहाँ पे नाइट से हमको स्टार्ट मिला, यहाँ पे किंग की तरह वो सोचने लगी है, मैच्योर भी हो गई है, स्टेबल हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें वो अपने पास छुपा के रखती है. अपनी पर्सनल चीज़ें जो है ना वो छुपा के रखती है, वो किसी को नहीं बताती है. बिकॉज वो जो दिखाती है दैट इज़ फॉर हर टू मूव अहेड इन हर लाइफ.
ओके, दैट इज़ नॉट वॉट शी रियली इज़. और जब आप ये चीज़ ये परत हटाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसने जो स्ट्रगल स्टार्ट किया है, एवरीथिंग वॉज नॉट ग्रीन एंड हैप्पी एंड प्लेन समतल जमीन, ग्रीनरी नहीं थी. एंड दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रास्ट रीडिंग. यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस इज ऑल अ ग्रीन पैच. ओके, ग्रीनरी सूट्स अस, मेक्स अस फील गुड एंड हैप्पी एंड मॉइस्चर है वहाँ पे, एवरीथिंग इज़ फाइन. लेकिन जब डेजर्ट है वहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे चिलचिलाती धूप है. ये चीज़ें वो एक्चुअली मे बी यू नो शी हाइड्स हर स्ट्रगल. जब इनिशियली जब वो स्टार्ट की होगी अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ना, तो काफ़ी स्ट्रगल था, बट शी वॉज ऑल गंगो ओवर इट. शी वॉज वेरी हैप्पी. उसने कभी इसको देख के, इस इमेज को देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दिस गर्ल इज़ dancing or has this body language, or she is so happy and enthusiastic and excited in this desert kind of a environment. ऐसा इसको देख के लगता है कि she is dancing, कोई म्यूजिक बज रहा है, she is happy, she is in a playground maybe, but this is a desert, hard and hard desert. तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन में भी शी स्टेड पॉजिटिव एंड शी केप्ट हर स्पिरिट हाई. और यहाँ पे भी स्पिरिट हाई हमें पता चल रहा है. Then people started seeing, she started leaving her traces after कुछ दिन के struggle के बाद. I think she came in Bollywood, Big Boss or what, I don't know. तो कुछ समय के बाद लोगों ने उसको नोटिस करना स्टार्ट किया. नाउ शी इज़ किंग. एंड येस, जो भी आप हम उर्फी के बारे में जानते हैं, देखते हैं, दैट इज़ नॉट द ट्रू सेल्फ. दैट इज़ ओनली टू शो द मीडिया, कि मीडिया कैप्चर्स दिस, पुट्स इट इन द न्यूज़, शी स्टेज इन न्यूज़, people stay curious about what she is doing, but real self जो है उसका वो hide करके अपने यहाँ रखती है. And yes, she has come a long way from starting as a page. आप इसकी पूरी जर्नी यहाँ पे देख सकते हैं. तो जर्नी जब देखने के लिए हमें मिल रहा है किसी के पर्सनालिटी में, इसका मतलब है कि दिस पर्सन डजंट गिव्स अप. ओके, क्योंकि चैलेंजेस तो हम सबके लाइफ में आता है. ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान किसी के लाइफ में चैलेंज देते हैं, किसी के लाइफ में नहीं देते. एवरीबडी गोज थ्रू देयर अप्स एंड चैलेंज, अप्स एंड डाउन्स, बट आगे वही बढ़ पाता है. यहाँ पे देखो, ये बंदी पेज से, नाइट से, किंग से, क्वींस के हर एक स्टेज पे वो आगे बढ़ रही है. तो जब वो हर एक स्टेज पे आगे बढ़ रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि शी हैज़ नॉट टेकन एनी शॉर्टकट्स. शी हैज़ डन, उसने अपना जो वो कर सकती थी वो उसने किया है. बिकॉज यहाँ पे हमें डांसल का कार्ड आया है ना, शी हैज़ टू ट्रस्ट हर ओन टैलेंट विद इन दिस पूल. शी नोज शी इज़ नोन नेपो किड, नो, तो उसको कुछ उसको पता है कि वॉट आर हर लिमिट्स एंड हाउ फार शी कैन डू इट. तो वो अपना जो चीज़ है वही उसको यूज़ करती है. शी नोज दैट शी कैन बी इन न्यूज़ विथ ऑल दीज थिंग्स, सो शी डज दैट. But it's not like, you know, she has compromised her dignity anywhere or she has taken any shortcuts to name or fame. ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए क्लियरली यहाँ पे हमें सारे stages का पता चल रहा है. And even, you know, the stability and धैर्य of this emperor who has come a long way. So इसके रीडिंग में ना ही हमें पेज आ रहा है, नाइट आ रहा है, क्वीन आ रही है, किंग आ रहा है, बट एक एम्परर भी आ रहा है. लाइक स्टार्टिंग अ जर्नी फ्रॉम स्क्रैच, ग्रासरूट टू लीडिंग अप टू दिस प्लेस. और ये वाला कार्ड लास्ट में है. तो 0 से स्टार्ट करके अगर आप 100 पे पहुंचोगे तो यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस. और हमने ये बात पहले ही पकड़ा था कि शी इज वो बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई लड़की है. यू नो, शी हवा में नहीं, वट एवर इट इज़, शी स्टेज ग्राउंडेड, वट एवर इट इज़. जब आपको दूर जाना रहता है ना, आप ग्राउंडेड रहते हो, आप अपने सक्सेस से पागल नहीं हो जाते हो, मतवाले नहीं हो जाते हो. सो दैट इज व्हाट इट इज. आई थिंक यहाँ पे इट्स नॉट, शी इज वेरी सॉर्टेड, थोड़ी बहुत काफ़ी सॉर्टेड है. उसका देखो, शी इज नॉट गेटिंग कंफ्यूज बाय लॉट ऑफ थिंग्स इन हर लाइफ. उसका फोकस देखो यहाँ पे यही है. शी नोज व्हाट शी वांट्स दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, शी वांट्स टू बी दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, और इसी पे फोकस है. और यहाँ पे एम्परर का कार्ड हमें बता रहा है कि येस, क्वाइट पॉसिबली शी हैज अचीव्ड दैट थिंग एंड शी इज वेरी फोकस्ड एंड नॉट स्कैटर्ड ब्रेन की यहाँ भी वहाँ भी, अब थोड़ा सक्सेस मिल गया तो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं. यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है. शी नोज व्हाट शी वांट्स एंड शी इज चेजिंग दैट ओनली. ये चीज़ हमें बता रहा है यहाँ पे. And yes, we don't know all of her, even though we may feel that we know everything, every aspect of her. She nicely camouflages things. Her emotions, वो अपने emotions नहीं दिखाती है. अपने real emotions जो होते हैं ना, real emotions like that kind of a thing. So that is the personality of Urfi Javed. Where is that deck? I'm not getting that surrender deck. Give me a moment.
All right, guys. So I don't have my surrender cards here, so maybe we are not supposed to be pulling that cards from that deck. Usually we do pull cards from that deck, but what we can do is that we can pull a card from another deck. Personality of Urfi Javed. Anything you want us to know, Angel? Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Okay, we have 2 cards. We don't want 2 cards. Okay, we have this. What's your thoughts? And wait. So she is very patient. उसने अपनी जर्नी स्क्रैच से स्टार्ट की, ग्राउंड रूट से स्टार्ट की, धैर्य के साथ आगे बढ़ी, अपने पे भरोसा रखा. शी हैज़ नो शुगर डैडी and all that. So she has been very patient and she has waited her way from page. तो ये जो wait and patience is very important part of her character. She wanted to go somewhere, पर it was not like she wanted to go there overnight. तो उसको कोई ज़रूरी नहीं थी कि वो अपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे या फिर शॉर्टकट्स ले. शी न्यू दैट शी विल रीच देयर. इट विल टेक टाइम. लंबे रास्ते से जाएंगे, कोई शॉर्टकट्स नहीं लेंगे, लंबा रास्ते से जाएंगे, टाइम लगेगा, बट नो प्रॉब्लम्स. आई विल वेट, आई विल गो देयर. तो ये वाला बात हमने पहले ही पिक किया था कि स्टेडली शी इज मूविंग टुवर्ड्स हर ड्रीम एंड उसको कोई हड़बड़ी नहीं है एंड शी विल डू इट हर वे. ओके, थॉट्स यहाँ पे डेफिनेटली है. देयर इज समथिंग दैट ईट्स हर अप बट शी इज डेफिनेटली नॉट शोइंग दैट टू अस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सोर्ड का कार्ड आप देखो नहीं दिख रहा है ना. एंड येट वी हैव द गाइडेंस की वॉच योर थॉट्स. तो सोर्ड का कार्ड नहीं है, यानी कि दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं हमें उसके नहीं पता चल रहा है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी टोल्ड, दैट शी हाइड्स हर थॉट्स, शी हाइड्स हर रियल इमोशंस एंड थॉट्स. एज अ क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स वी गेट टू नो दैट शी हाइड्स हर रियल सेल्फ, हर रियल सनी सेल्फ आप बोल सकते हैं. एंड शी एक्चुअली चूजेस टू शो वॉट वो कौन सा दिखाना चाहती है, बिकॉज शी इज इन टू द बिजनेस. यू नो शी इज, वी नो हर एज अ प्रोफेशनल, सो शी नोज कि प्रोफेशनली मुझे क्या, what aspect of my life I have to show that can move me ahead in my career. Baki personal life she keeps it to herself. That is what we are getting about her personality. She is very focused also कि उसको क्या चाहिए. देखो, very contrasting card. This guy totally focused on this big money and this guy focused on lot of things. So she knows what she wants in her life and she is directed, her energy is directed towards that. So that is the guidance, guys. Thank you so much for watching. Do let me know your thoughts on Urfi Javed. And she was a bully also. You know, she was bullied, but she is a damsel now. तो हमने बात किया ना कि मे बी शी कम्स फ्रॉम अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड जहाँ पे इतने बड़े ड्रीम को वो देख रही है. इट विल बी लाइक, उसे लगा भी होगा कि हाउ कैन शी इवन अचीव दैट, फ्रॉम बीइंग बुलिड टू बीइंग द डैम्सल. डैम्सल एज इन, यू नो, eye catchy damsel. So that is it. So she has made this kind of transformation in herself from being this to being this and being totally comfortable with all the spotlights falling on her. Fine, no problems. So that is the guidance on Urfi Javed, guys. Do let me know your thoughts and I will see you again. Take care. Bye for now.